Hello everyone, my name is Dr. Aman Verma. I'm from AIMS Patna and my All India rank was 470. So today we'll study electromagnetic induction. So the first question is, a square of side L meter lies in the XY plane in a region where the magnetic field is given by B is equal to B naught 2I 3J 4K Tesla, where B is constant. The magnitude of flux passing through the square is. So the पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें बस फ्लक्स कैलकुलेट करना है. तो फ्लक्स होता क्या है? Flux is basically the magnetic flux, which is basically the total number of magnetic lines which is passing normally through an area placed in a magnetic field. So in this question, we have a square of side L meters lying in the XY plane in a region. So we'll make an XY plane. So now you can see a square of side L meters in an XY plane. So as we all know that flux is equal to the product of magnetic field into the area. So magnetic field is given in the question. It is B naught 2I 3J cap plus 4K cap Tesla. And area we know of a square is the product of its sides. So it is L square. And it is lying in the Z axis. So now we will get K cap. So what we have to do is now just simply multiply both the magnetic field and area and we'll get our flux. So we'll get the answer 4B, which is the option C. So the key concept in this question was how to derive magnetic flux. So now we will come to the next question. A loop made of straight edges has 6 corners and we have its coordinates in this form: A000, B L00, C LL0, D0L0, E0LL and F00LL. A magnetic field B is equal to BI plus KT is given here, which is present in this region. The flux passing through the loop ABCDEFA in that order is. So now again we have to calculate the flux. So we will again draw the axes. So A is on 0 0 0. Okay. B कहाँ पर है? B है B है आपका L00 पर, C है LL0 पर. E है और F है तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? A magnetic field
B is equal to BI plus KT is present in the region. The flux passing through the loop ABCDEFA in that order is. So A तो इन ऑर्डर क्या दिया हुआ है हमें लूप का, जिसमें हमें पता करना है फ्लक्स को ABCDEFA. तो ये रहा हमारा ABCD लूप. इसका एरिया किस डायरेक्शन में है, Z एक्सिस में है या फिर हम बोल सकते हैं K एक्सिस में है. फिर उसके बाद DEFA लूप को देख लेते हैं हम लोग. ये किस डायरेक्शन में है, ये X डायरेक्शन में या फिर I डायरेक्शन में है. तो अब हमें वापस से फ्लक्स कैलकुलेट करना है. फ्लक्स इज इक्वल टू, हमें सिंपली एरिया का सम चाहिए. तो पहले लूप का एरिया हो गया A1, दूसरे लूप का एरिया हो गया A2. अब वापस से हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है. तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है BI प्लस K डॉट प्रोडक्ट विद द एरिया. तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 2B L स्क्वायर वेबर. हमने L स्क्वायर K कैप को K कैप से मल्टीप्लाई किया, I कैप को I कैप से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास आ गया 2B स्क्वायर L स्क्वायर वेबर. ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया B. अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर. A cylindrical bar magnet is rotated about its axis. A wire is connected from the axis and is made to touch the cylindrical surface through a contact. अब हमसे पूछा जा रहा है a direct current flows in the ammeter A. No current flows through the ammeter A. C option is an alternating sinusoidal current flows through the ammeter A with a time period 2 is equal to 2 pi by omega. और D है a time varying non sinusoidal current flows through the ammeter A. तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिलेंडर है जिसको हम लोग एक एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हैं, और इसमें भी वही सेम फिनोमिनन यूज हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. व्हेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस. लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम उसको एक सिंपल एक्सिस पर घुमा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं. तो उस कंडीशन में कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा. नो चेंज इन फ्लक्स लिंक विद द सर्किट टेक्स प्लेस, तो विच विल इवेंचुअली रिजल्ट इनटू नो ईएमएफ इंड्यूस. तो हम लोग सिंपली ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हैं. यहाँ पर पहला ऑप्शन है डायरेक्ट करंट फ्लोज इन द एमीमीटर. सिंपली इसका आंसर तो सिंपली नो करंट फ्लोज टू द एमीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि बाकी जितने भी ऑप्शन है उनमें वो बोल रहा है कि करंट किसी ना किसी फॉर्म में फ्लो कर रहा है. किसी में बोल रहा है कि डायरेक्ट करंट फ्लोज इन द एमीमीटर. सी ऑप्शन में बोल रहा है ऑल्टरनेटिंग साइनसॉइडल करंट फ्लोज थ्रू द एमीमीटर, और डी ऑप्शन में बोल रहा है टाइम वेरिंग. जबकि जब सिलेंडर अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है तो कोई फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है. तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, तो एमीमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा. तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा नो करंट फ्लोज थ्रू द एमीमीटर ए. हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार सिलेंडर को. ये सिलेंडर का एक्सिस हो गया, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गई, और ये हमने एक एमीमीटर कनेक्ट कर दिया है इससे.
तो सिंपली जब ये सिलेंडर घूमेगा ऐसे, तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस हैं वो इसके थ्रू कांस्टेंट रहेंगी किसी भी पॉइंट पर। बेसिकली फ्लक्स जो है कांस्टेंट रहेगा। तो कोई फ्लक्स में जब चेंज नहीं आएगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा नो करंट फ्लोस थ्रू द एमीटर। अब जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। There are two coils A and B as shown in the figure 6.2. आप देख सकते हैं दो कॉइल्स हैं यहाँ पे। A current starts flowing in B as shown when A is moved towards B and stops when A stops moving. The current in A is counterclockwise. B is kept stationary. B is kept stationary when A moves. We can infer that. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी में जो करंट है, ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए, देयर इज वेरिंग करंट इन ए, देयर इज नो करंट इन ए, देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। तो हमें यहाँ पे पहले ही बता दिया गया कि करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी एज शोन व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स बी एंड स्टॉप्स व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग। तो जब ए मूव करना स्टॉप कर देता है तो उस टाइम में बी में भी क्या कहते हैं, स्टॉप हो जाता है। व्हेन ए अ करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी एज शोन व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स बी एंड स्टॉप्स व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग। तो अगर ए मूव करना स्टॉप कर दिया और बी में भी स्टॉप हो गया, इसका मतलब या तो इसका सिंपल एक ही मतलब हो सकता है कि जो ए में करंट फ्लो कर रहा है वो कांस्टेंट है। क्योंकि अगर वो कांस्टेंट नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे हम दो कॉइल्स बना लेते हैं अपने ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए कॉइल है इसका वेलोसिटी है 0 और इसमें जो करंट है वो कांस्टेंट है आई। तो कांस्टेंट आई है तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी वो भी कांस्टेंट रहेंगी, जो कि मान लीजिए जब जो आपका आई करंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो बाहर की तरफ आएंगी इस तरीके से, और बी में कुछ इस तरीके से घुसेंगी। लेकिन कांस्टेंट करंट होने की वजह से जो लाइंस हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो हमें पता है कि अगर ये लाइंस अगर कांस्टेंट है या फिर फ्लक्स कांस्टेंट है तो किसी भी तरह का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो हम उस हिसाब से अपने आप हम लोग ऑप्शन बी को रूल आउट कर सकते हैं। दैट इज देयर इज अ वेरिंग करंट इन ए, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि जब हमारा ए कॉइल रुक जाता है तो बी में भी करंट मूव होना रुक जाता है, फ्लो होना रुक जाता है। तो उस हिसाब से हमने अपने बी ऑप्शन को रूल आउट कर लिया है। अब सी ऑप्शन को देखते हैं, देयर इज नो करंट इन ए। ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ए में करंट ही नहीं होगा तो यहाँ तो लिखा हुआ है ना कि करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन बी एज शोन व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स बी एंड स्टॉप्स व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग। तो बी में करंट तो तभी मूव करेगा जब ए में किसी ना किसी टाइप में फॉर्म में करंट होगा। तो इसलिए हम लोग सी को भी रूल आउट कर लेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन ए और डी को। देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए और देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए। तो हमें ये तो क्लियर है कि यहाँ पे करंट जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन हमें ये पता करना है कि उसका डायरेक्शन क्या है, वो क्लॉकवाइज है कि काउंटर क्लॉकवाइज है। तो जब हम ये देखते हैं कि ए एक v वेलोसिटी से b की तरफ बढ़ता है तो b में एक काउंटर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होता है। काउंटर क्लॉकवाइज करंट जब प्रोड्यूस होगा तो उसका जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ। और
ए जब उसकी तरफ बी की तरफ मूव कर रहा है तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमको एनर्जी कंजर्वेशन करना है। तो जब ए में भी काउंटर क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होगा तो उसका जो फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो उसमें से निकलकर बी में अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें बी में भी काउंटर क्लॉकवाइज करंट चाहिए, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो उससे हम इन्फर कर सकते हैं कि ए में काउंटर क्लॉकवाइज करंट जब फ्लो करेगा उसी कंडीशन में बी में काउंटर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है same as problem 4 except the coil is made to rotate about a vertical axis and no current flows in B if A is at rest. The current in coil A when the current in B at t is equal to 0 is counterclockwise and the coil A is shown at this instant. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग लेंस लॉ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेंस लॉ क्या बोलता है। लेंस लॉ से हमें मिलता क्या है? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट। So what does this law states? According to this law, the direction of induced EMF or current in a circuit is such as to oppose the cause that produces it. And this law is based upon law of conservation of energy. ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट है एक सर्किट में वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होगा जो उसके कॉज को अपोज करे। यानी कि एक कॉइल है, उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ अंदर की डायरेक्शन में जा रही हैं तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इस लूप में कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जो एक ईएमएफ करंट प्रोड्यूस करेगा जो इन मैग्नेटिक फील्ड्स को कैंसिल करे, व्हिच इज बेसिकली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो अब हम लोग वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लेंस लॉ तो हम लोग समझ चुके हैं कि लेंस लॉ क्या एग्जैक्टली स्टेट कर रहा है। तो जब करंट बी कॉइल में काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा होता है एंड द कॉइल ए इज कंसिडर्ड अबव इट, तो द काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ द करंट इन कॉइल बी इज इक्वलेंट टू द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एलिमिनेटिंग अपवर्ड टू कॉइल ए। ठीक है, तो हम अपना डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने अपना एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया और तो क्वेश्चन बोल रहा है कि coil A is made to rotate about a vertical axis as shown in the figure 6.3. No current flows in B if A is at rest. तो अगर A रेस्ट पर है और B में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम सीधे सीधे B और C ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेरिंग करंट होता और A अगर रेस्ट पर भी होता तो भी B में करंट फ्लो करता, पर यहाँ पे मेंशन है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है जब A रेस्ट पर है। तो सिंपली हम लोग बी और सी ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हैं। अब हमें ये पता चल चुका है कि करंट कांस्टेंट है, लेकिन हमें उसका डायरेक्शन पता करना है। तो जब बी में हमें दिया हुआ है कि
जो करंट है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो फील्ड्स है वो बाहर की तरफ आएंगी, या फिर हम इधर अपने बड़े डायग्राम में देख लेते हैं। जब करंट आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग फील्ड्स जो है वो बाहर की तरफ आएंगी। सो जो ये फील्ड्स हैं ये ए लूप में कुछ इस तरह से जाएंगी, जानी चाहिए। आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसको हम मार्क कर लेते हैं। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि the self inductance L of a solenoid of length L and area of cross section A with a fixed number of 10 increases as। ठीक है, तो एक सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम उन फैक्टर्स को बेसिकली हमें उन फैक्टर्स को देखना है। तो यहाँ पर क्या चीजें मेंशन है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अब हमसे पूछ रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा कब। मतलब क्वेश्चन का बेसिकली प्रीमाइस क्या है कि हम सोलेनॉइड में क्या चेंजेस कर दें कि उसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाए। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी इंटू एन स्क्वायर ए बाय एल। तो यहाँ पर एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम एरिया को बढ़ाएंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, और हम जब लेंथ को डिक्रीज करेंगे तब सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दैट स्टेट्स दैट L डिक्रीजेस एंड A इंक्रीजेस। तो इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि एरिया बढ़ाने से सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा और सोलेनॉइड का लेंथ कम करने से सेल्फ इंडक्टेंस खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। A metal plate is getting heated. It can be because a direct current is passing through the plate. It is placed in a B option is it is placed in a time varying magnetic field. C option is it is placed in a space varying magnetic field but does not vary with time. And D option is a current either direct or alternating is passing through the plate. तो जब भी एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो एक किसी कंडक्टिंग मटेरियल
के थ्रू पास किया जाता है तो उसमें एक टाइप का करंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग एडी करंट बोलते हैं या फिर सर्कुलेटिंग करंट बोलते हैं। और ये जो एडी करंट्स हैं इनका मैग्नीट्यूड काफी हाई होता है जिनकी वजह से कंडक्टर है वो बहुत जल्दी हीट अप हो जाता है। तो अब हम लोग ऑप्शंस को दोबारा देखते हैं एक बार। अ डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा क्योंकि कॉमन सेंस भी बोलता है कि अगर आप किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास करेंगे या किसी मेटल प्लेट के थ्रू करंट पास करेंगे तो उसमें हीट जनरेट होगी या एनर्जी जनरेट होगी, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो फ्लक्स जनरेट करेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा और करंट जनरेट होगा। तो अगेन बी भी आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं अपने सी ऑप्शन पे। इट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विद टाइम, मतलब कि मान लो एक स्पेस है उसमें आपका मेटल प्लेट रखा हुआ है और यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला है और यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है, बट जो प्लेट है उसका पोजीशन फिक्स्ड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही है, तो उस केस में कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा मेटल प्लेट में और सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब डी ऑप्शन देखते हैं। अ करंट आइदर डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग इज पासिंग थ्रू द प्लेट, ये भी सही हो जाएगा। तो इसके 3 आंसर सही हो जाएंगे, ए बी एंड डी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? An electromagnetic force is produced in a coil which is not connected to an external voltage source. This can be due to. Question number 8 क्या बोल रहा है कि an EMF is produced in a coil which is not connected to an external voltage source. This can be due to. तो हमारे पास एक coil है जिसमें EMF प्रोड्यूस हो रहा है but it is not connected to an external voltage source. This can be due to. तो हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब हम जानते हैं अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो अब हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं। द कॉइल बीइंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा टाइम के साथ वेरी करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। अब अगला ऑप्शन है द कॉइल मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए हमारा जो कॉइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो टाइम के साथ चेंज हो रही हैं जिसमें वो मूव कर रहा है। तो अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो अगेन हम देखेंगे कि जो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला है उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, वो चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, which will again result into production of an EMF. तो ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, कॉइल मूविंग इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो सी गलत हो गया। द कॉइल इज स्टेशनरी इन एक्सटर्नल पार्शियली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच डज नॉट चेंज विद टाइम। क्या लिखा हुआ है? द कॉइल इज स्टेशनरी इन एक्सटर्नल स्पेशली वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो डी ऑप्शन बोल रहा है कि
जो कॉयल है वो एक ऐसे जगह प्लेस है जो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्पेशली चेंज हो रही है बट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। तो अगेन मान लेते हैं कि हमारा जो कॉयल है वो एक ऐसी जगह पे प्रेजेंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्पेशली चेंज हो रही है। मान लेते हैं कि इतने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, इतने एरिया में नहीं है, फिर उसके बाद वो इतने एरिया में रहती है और फिर इतने एरिया में रहती है, यानी स्पेशली चेंज हो रही है। तो अगेन हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, which will again result into change in flux, which will again result into generation of an EMF. Sorry. uh, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा गलती हो गई। The coil moving in a constant magnetic field. तो इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या है? As we know, whenever the number of magnetic lines of forces या फिर magnetic flux passing through a circuit change, an EMF is produced in the circuit called induced EMF. The induced EMF persists only as long as there is a change or cutting of flux. In this problem, we can see that magnetic flux linked with the isolated coil changes when the coil is placed in the region of time varying magnetic field. वो हमने देख लिया, यहाँ पे magnetic field change हो रही है. The coil moving in a constant magnetic field or in a time varying magnetic field. तो उस हिसाब से यहाँ पे दो ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे, the coil being in a time varying magnetic field या फिर the coil moving in a time varying magnetic field. The coil moving in a constant magnetic field में EMF इंड्यूस नहीं होगा और the coil is stationary and externally is partially varying magnetic field which does not change with time. इसमें भी EMF प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हम अगेन एक एरिया बना लेते हैं जिसमें स्पार्शली आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी कर रहा है लेकिन टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे टेस्ला है, 1 टेस्ला है, इतने एरिया में 2 टेस्ला है। तो अगर कॉइल यहीं पे स्टेशनरी है तो आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं यहाँ से वो कांस्टेंट है, तो उस केस में कोई भी फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा और कोई भी चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसकी वजह से कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमारा 8th क्वेश्चन का आंसर ए और बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 of coil 1 with respect to coil 2 increases when they are brought near, depends on the current passing through the coils, increases when one of them is rotated about an axis, is the same as M21 of coil 2 with respect to coil 1. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है? Whenever the current passing through a coil or circuit changes, the magnetic flux linked with the neighboring coil or circuit will also change. Hence, an EMF will be induced in the neighboring coil or circuit. This phenomenon is called mutual inductance. मतलब क्या हुआ कि जब भी एक दो कॉइल आसपास रखे हुए हैं, उसमें से एक कॉइल में आप करंट पास करते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है वो अफेक्ट करता है आपके नेबरिंग कॉइल को भी, और उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसी इंडक्शन ऑफ ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। तो
म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला जब कॉइल 1 का 2 पर इफेक्ट देखने के लिए हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू इंटू N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाय L। और अगर हमें यही चीज विद 2 का विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखना हो तो भी हम लोग सेम ही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो उस केस में ये तो क्लियर है कि दोनों ही केसेस में म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होगा, तो हमारा डी ऑप्शन तो सही है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, इंक्रीजेस व्हेन दे आर ब्रॉट नियर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, लेंथ के। तो अगर हम लोग L को कम करेंगे तो M बढ़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हो, इंक्रीजेस व्हेन दे आर ब्रॉट नियर, तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला में कहीं भी करंट नहीं है तो करंट पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। इंक्रीजेस व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। सी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, इंक्रीजेस व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो गया ए और डी। अब हम अपने एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू पर आ जाते हैं। A circular coil expands radially in a region of magnetic field and no electromotive force is produced in the coil. This can be because, अब हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है और जो कि रेडियली एक्सपैंड कर रही है इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and no electromagnetic motive force is produced in the coil. This can be because. तो पहला ऑप्शन है द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। तो अगेन इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज करना है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ is produced in the circuit called induced EMF. The induced EMF persists only as long as there is a change or cutting of flux. और induced EMF हमें मिलता कैसे है? Induced EMF is equal to change in flux with change in time. तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, और क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि सर्कुलर कॉइल एक्सपैंड कर रहा है रेडियली इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो अगर वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपैंड करेगा तो टाइम के साथ में फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि जो मैग्नेट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अभी पास हो रही थी इस सर्टेन एरिया में, वो जब इसका एरिया बड़ा हो जाएगा तो वो नंबर ऑफ लाइंस भी बढ़ जाएंगी, वो लाइंस बढ़ जाएंगी तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ मिल जाएगा या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिलेगी। तो उस केस में बी तो आंसर नहीं होगा, उस केस में सॉरी ए तो आंसर नहीं होगा। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल एंड इट मे और मे नॉट वेरी। तो मान लेते हैं कि हमारा जो कॉइल है वो उसी प्लेन में है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लेते हैं कि वो एक XY प्लेन में है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी सेम प्लेन में है। तो इस केस में अगर कॉइल का साइज चेंज भी हो जाए लेकिन फिर भी फ्लक्स तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि हमें पता है फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो जब वो सेम प्लेन में हो जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। तो अब मैग्नेटिक फील्ड चाहे वेरी करे या ना करे, फ्लक्स तो जीरो ही रहेगा। तो उस केस में बी सही आंसर है, कोई भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगी। फिर आ जाते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर। द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ परपेंडिकुलर component whose magnitude is decreasing suitably.
अपना डी ऑप्शन देखते हैं. देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्शन. अमन, यस सर. आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे. यस सर. मुझे एक दो चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी वो मैं तुम्हें थोड़ा बताना चाह रहा हूँ. यस सर. पहला तो ये कि जैसे हम लोग जो मिसलेनियस कर रहे हैं इसमें दो करेक्ट आंसर भी हो सकते हैं क्या? क्या बोल रहे हैं सर? 6.8 या 6.9 में यस जो सर. डबल टिक लगा हुआ है राइट का, यस तो सर. वो दो करेक्ट आंसर है? यस सर. नहीं, एक ही करेक्ट आंसर हो सकता है. तो अच्छा सर. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना होगा. कभी भी दो करेक्ट आंसर कैसे हो सकते हैं? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर. यस सर. हम चार ऑप्शन में, सपोज हम केबीसी खेल रहे हैं, चार में से एक ही ऑप्शन सही होगा ना. यस सर. और वो ऑप्शन जो सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे क्लोजेस्ट है हम उसको मार्क करते हैं. तो 6.8 में जैसे 6.9 में दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो हमें हमेशा ना एक ऑप्शन को ही लेकर चलना है, पहला ही. दूसरा जो ऑब्जर्व किया हमने, जो शायद कल के सेशन में उसमें आप इम्प्रूव कर लोगे, हमारा पॉज बहुत लंबा हो रहा है. यस. पॉज इन द सेंस कि हमने 6.8 जब स्टार्ट किया तो 6.8 स्टार्ट करने के बाद हर एक ऑप्शन पे पॉज हमारा ज्यादा हो रहा है, मतलब हमारा साइलेंस हो रहा है. तो जब साइलेंस होता है ना, भले ही वो 30 सेकेंड्स का हो या 1 मिनट का हो, बट ध्यान को भटकाने वाला होता है. यस सर. अगर हम कोई पिक्चर देख रहे हैं और उसमें हर 2 मिनट बाद एक 30 सेकंड का ऐड आ जाए तो हमारा ध्यान भटकेगा. यस सर. तो हमें क्या पिक्चर विदाउट ऐड दिखानी है बच्चों को. दैट मीन्स कि हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे सम्स के बीच में, हर एक सम्स के बीच में पॉज बहुत लंबा नहीं आएगा. जैसे अभी 6.10 भी जब हम कर रहे थे तो बी का जो ऑप्शन सेलेक्ट, मतलब आपने राइट किया, उसके बाद पॉज था, मतलब अराउंड 30 सेकेंड्स के आसपास. तो हमें वो सेशन में नहीं रखना है. ठीक है. तो ये दो ऑब्जर्वेशन थे. एक तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट और क्लोजेस्ट आंसर को चेक करना है, और दूसरा हमें पॉज कम लेना है. ठीक है. तो ये दोनों सेशन, मतलब जो बातें हैं कल के सेशन में, आई होप कि थोड़ा सा आप इम्प्रूव करोगे. बिकॉज आज फर्स्ट सेशन था तो मैं समझ सकता हूँ कि वो पहले सेशन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम थोड़ा सा नहीं, मतलब उतनी तरीके से, सही तरीके से होती. कोई बात नहीं, कल फिर से करते हैं हम लोग, और 6.10 से स्टार्ट करेंगे कल, है ना? यस सर. तो अमन, कल का भी सेम टाइम रखना चाहोगे आप, 11 बजे का? यस सर. ओके. या फिर मैं आपको ना एक बार शेड्यूल चेक कर लेता हूँ. अगर 11 का 11:30 हो तो कुछ चलेगा ना? हाँ, चल जाएगा सर. फाइन, ग्रेट, थैंक यू. सो अमन, आज का सेशन यहीं तक रख रहे हैं. यस. और आप मीटिंग लीव कर सकते हो, है ना? ओके सर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर.